اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو صلاحیتیں اللہ پاک نے دی ہیں ان کا مصرف بھی بتا دیا ہے۔ تو سب سے بڑی صلاحیت انسان کی فکری صلاحیت ہے، ذہنی جو صلاحیت ہے یہ بہت بڑی قوت ہے۔ تو اس کا پہلا مصرف جو ہے وہ الہی کلمۃ اللہ ہے، کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، تو یہ ہماری صلاحیت ہے، اس پہ لگنی چاہیے۔ دوسری صلاحیت ہماری جسمانی قوت ہے، تو اس کا پہلا مصرف بھی الہی کلمۃ اللہ ہے، کہ یہ جو صلاحیت ہے ہماری، یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہو۔ تیسری صلاحیت ہماری مالی صلاحیت ہے، تو اس کا پہلا مصرف ہی علماء یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ محنت ہو رہی تھی، تو یہ صلاحیتیں جو تھیں یہ صحیح صرف ہو رہی تھی اور دین پھیل رہا تھا۔ کیوں کہ یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں یہ دین کے پھیلانے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں استعمال ہو رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ جوہر دیے ہیں اس کا استعمال بھی بتایا ہے۔ تو اس وقت یہ جوہر جو تھا صحیح لگ رہا تھا، اور بڑے تھوڑے سے مختصر سے عرصے میں اللہ پاک نے یعنی پوری دنیا میں جو جانی جا رہی تھی دین پھیلا دیا، کیونکہ ہر شخص اپنی ان صلاحیتوں کو دین کے پھیلانے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ اب اس کو آپ اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو عرصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر یہ کوئی 5.25 صدیاں بنتی ہیں، کوئی نبی علیہ السلام نہیں ہے، اور دنیا کا یہ حال ہے کہ یہودی یہودیت چھوڑ چکے ہیں، عیسائی عیسائیت چھوڑ چکے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں انہوں نے خانہ کعبے میں بت رکھے ہوئے اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور طواف جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، ننگا طواف ہو رہا ہے، مرد عورتیں ننگا طواف کرتی، دروازوں سے داخل نہیں ہو رہے، دیواریں پھاند کر آ رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ جب ابرہہ نے حملہ کیا ہے تو اللہ پاک نے ابابیلوں کے ذریعے سے اس کو کھائے ہوئے، اس کی فوج کو کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور ان 53 سالوں میں یعنی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے کی زندگی آپ کی ان کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سب جانتے ہوئے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور وہاں انہیں مکہ کو یعنی چھوڑنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر مدینہ میں بھی 10 سال کا عرصہ گزرا. یعنی آگے تشریف لیں. بہت تکلیف ہوا. ٹھیک ہے، شکراً، جزاک اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست اور بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں بہت عزت عطا فرمائی. کیسے؟ خود اللہ تو ایک وضاحت سے ہمیں سمجھا رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بہت کیا دیا؟ عزت. دوسرے تمام مخلوقات پر بہت سے وجوہ ہے. ان میں سے ایک کیا ہے بھیا؟ عقل. کیا دیا؟ عقل دیا. جنگلات کی تمام حیوانات جا کے ہم کہتے ہیں شیر، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنگلات کے جو راجا ہوتے ہیں نا، شیر ہے نا، بادشاہ ہوتا ہے. تو بادشاہ صاحب سے کہنے لگے آپ ہمارے بادشاہ ہے، خیال تو کچھ کیجئے. کہتے کیا خیال کرنا؟ ہاتھی کہہ رہا ہے، سب سے اونچا لمبا موٹا جو ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یہ جو انسان نام کے ایک حیوان ہے ہمیں بہت دکھ دیتے ہیں. کہتے کیسے؟ کہتے ہمارے پیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، طرح طرح کے تکلیفات کے کام کراتے ہیں. کام میں اگر تھوڑی سی کمی ہو، ڈنڈا ہے، اس کے سامنے لوہا ہے، ایسا مارتا. وہی جا کے کہنے لگے جی جناب آپ کا تو ناک نہیں کاٹا، ہمیں تو ناک سوراخ کر کے اندر سے کیا لگا دیتے ہیں؟ رسی. کیا لگا دیتے ہیں؟ رسی. جب کھینچتا ہے جان نکل جاتا ہے. گائے جا کے کہنے لگے دودھ پورا رکھا میرے بچے کے لیے. لیکن یہ حضرت انسان سب آ کے بچے کو ادھار لے جاتے ہیں، پھر جا کے سب لے جاتے، تھکاتے جان نکل جاتا ہے. پھر جا کے ہاتھ پیر باندھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گورے پہ چھری لگا دیتا ہے. سب آ کے کہنے لگے. وہ بیچارہ زندگی میں کبھی بنی آدم دیکھا نہیں، کیونکہ جنگلات کی راجا ہے، بادشاہ ہے، گھنے جنگل میں رہتے ہیں نا، کنارے پہ کبھی آیا نہیں. اب وہ کہنے لگے کیا وہ ہم سے موٹا ہے؟ کہتے نہیں. اونچا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ایک چھلانگ میں درخت کے اوپر اٹھ سکتے ہیں، نیچے وہ نقطہ؟ کہتے نہیں. تو پھر چلو ان کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے. چلا. پیچھے کون ہے؟ ہاتھی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور کتنا کچھ ہے. سامنے جا کے دیکھتا ہے زیراف. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گردن جیسا کہ بہت لمبا ہوتا ہے نا، اوچن. کہتے حضرت کہاں جانا ہے؟ کہتے سنے ہیں بنی آدم میرے
रियाया को बहुत तकलीफ देते हैं, आज उनको शाइस्ता करना है। आज उनको क्या करना है? कहते जी जनाब सामने कदम मत बढ़ाइएगा, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत। कहते क्या है उनको? कहते कहिए मत, जाइए मत, अरे छोड़ो। अक्ल जिनको नहीं होता ना, वो अपने ताकत पर क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। उसमें एक किस्म की गुरूर आ जाता है, गुरूर। अक्ल गुरूर कोई लगाम जो भी हो। सामने जाके देखा लोमड़ी, कहाँ जाना है जी जनाब? कहते इंसान को शाइस्ता करना है। कहते या अल्लाह सामने मत जाइएगा। कहते क्यों? बहुत खतरनाक है। क्या मुझसे ताकतवर है, मुझसे ऊंचा है, मुझसे लंबा है, ये है वो है वो है? कहते कुछ नहीं, लेकिन वो जब मकर चलाएगा, अकल चलाएगा, आप फंस जाएंगे। कहते छोड़ो। जाते 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 एकदम एक बिल्कुल किनारे पे जाके देखा एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा दरख्त को काटने के लिए, हम कहते हैं आरा, आप लोग क्या कहते हैं? आरा। मुझे उर्दू बोल के क्या करना? हाँ, मुसादत करना, क्योंकि मैं उर्दू में कमजोर हूँ। तो आरा लेके वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काटना है। थक गए, थक के चूर चूर होके जब बैठा, देखा बड़े सांप भी है, छोटे सांप भी है, और भी है और भी है। कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या है जी? कहते तो पहले ये कहा तो इंसान है नहीं, तबीयत गर्म है। समझ गए कुछ करना चाहते? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, इंसान मेरा चाचा है। ये सब आपके पास नालिश किए हैं, आपके रियाया को बहुत तकलीफ देते हैं, ठीक है ना? कहा मुझे भी तकलीफ देते हैं, देखिए मेरा बदन चलता नहीं। चाचा ने कहा दोपहर से पहले अगर इस दरख्त को काट ना सके, सर कलम कर दूंगा, मार डालूंगा। मैं जान के बचाने के लिए, देखिए ताकत नहीं चलता, चोट चोट हो चुका, पसीना निकल चुके हैं। कहते तेरा चाचा कहाँ है? कहता का दरख्त काटने से पहले चाचा को देखा दूंगा, चाचा दूर से ऐसा मुकर करेगा मेरा जान निकल जाएगा। मैं अगर मर गया तो चाचा का शाइस्ता हुआ तो मेरा क्या हुआ? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसको काट डालूं, काट के कहूंगा चाचा जी काट लिया। आप समझ लेना वही इंसान है। उसको अगर आपने कत्ल कर दिया, आहा आपको लाखों सलाम। कहते जल्दी कर। इंसान जल्दी नहीं करता, इंसान काम करते हैं किससे? अकल से, एहतियात से। उनका काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कौम आए, नबी के पास आए ना, कबीले अशज। अब सबको छोड़ के, गोरा छोड़ा, गधा छोड़ा, और छोड़ा, कपड़ा वगैरह सब छोड़ के छलांग लगा के नबी के पास दरबार में जाने लगे। कौन किससे पहले जाएंगे? कोई जाके हाथ को घुसा देंगे, कोई पेशानी को, कोई पैर को, नबी के सामने जाके बैठेंगे। हमारे यहाँ देखते हैं ना, मजलिस में सबसे पहले कौन बैठेगा? उसके लिए सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सिफत। सब चले गए, आमिर साहब सब संभाला, गादा को छोड़ा, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा वगैरह सब सुधार के, वज़ू इस्तिंजा से फारिग होके, नई कपड़ा पहन के, खुशबू वगैरह ला के, खुशबू वगैरह ला के लगा के नबी के पास गया। रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि सरदार जी अभी तक नहीं आए। नबी उनके आने के बाद कहा तुम्हारे पास दो सिफात है जिनका अल्लाह पसंद करते हैं। एक क्या है? अल-हिल्म वल-इनाअतु। एक का नाम क्या है? हिलिम। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, सब मेरे ऊपर है। अक्लमंद ये नहीं कहता। अक्लमंद क्या कहता है? ठीक है, मेरे भाई अच्छे काम कर रहा है, मैं उनकी तरफ से कर लो तो उनका सवाब भी मिलेगा, मेरे सवाब तो मिलेगा ही। अक्लमंद सब कुछ को क्या करते हैं? हलीम जिसको कहते हैं, सबको अच्छे अंदाज से करके फिर अक्ल की तकाजा को लेके सामने चलता है। नहीं आया और पसीना पसीना नहीं,
अच्छी कपड़ा पहन के वज़े संजा करके अतर वतर लगा के नबी के दरबार में जाना। जो भी हो, तो अल-उज्लतु मिनश शैतान, जल्दी करना शैतान की तरफ से है। हाँ, नेक काम में जल्दी करना अच्छा है, लेकिन फिर भी समझ बूझ के। हमारे बांग्लादेश में कहते हैं होश भी हो, जोश भी हो, होश भी हो। ऐसा नहीं, जोश तो है, होश भी है। कहते नहीं, गाड़ी कितना किलोमीटर चलता है? कहते 400 किलोमीटर। वाह वाह, ये गाड़ी तो हमें चाहिए जी, सस्ता भी है। आहिस्ता कान कान में फरमाया, ब्रेक नहीं है, कोई खरीदे के भी नहीं। जोश भी हो, होश भी हो, जो भी हो। कहते जल्दी कर, कहते ताकत साथ नहीं देता। तो आप कुछ मुझे इमदाद कीजिए, मुसाइदा कीजिए। कहते क्या मुसाइदा करूं? दोनों तरफ से खींच के पकड़िए। जब काटते हैं ना, अंदर एक देते हैं ना, आपके यहाँ देते हैं या नहीं? हाँ, तो उसने खींच के फिर कहने लगे देखिए, दोनों तरफ से अगर जख्त आ जाएगा तो आपको तकलीफ होगा। कहते जल्दी कर, जीना मरना दरख्त में, दरख्त के साये में, क्या तकलीफ होगी? जब दोनों हाथ अंदर दाखिल किया, अब बहुत बड़ा मोटा, उसने वो जो छोटा सा दिया था ना कटने के लिए, मारा इसे, वो तो उड़ गए। दोनों तरफ से चापाया, हाथ अब निकल नहीं पाए। जब हाथ क्या फंस गया, आप चिल्लाना शुरू किया। हाँ, शेर की चिल्लाना जब शुरू होता है ना, ऊपर से बंदर गिर के कलजा फट के मर जाता है। अब पीछे जो थे हाथी, भैंस, गाय, बकरी, सब क्या भागा। अब अकेला पड़ गए। अब जब देखा कि क्या नहीं करेंगे, छुटकारा पाने के लिए रस्सी वगैरह ले आए, बांधा अच्छे अंदाज से। फिर जाके कहने लगे शेर जी मेरे तरफ अच्छे अंदाज से देखिए, मैं इंसान का बच्चा इंसान हूं, आप आपका कलेजा निकालूंगा, खून और क्या शहम लहम मगज बाजार में बेचूंगा, फिर जाके पैर के ऊपर पैर उठा के चाय पी के मगज को ठंडा करूंगा। ये अकल किसने दिया भैया? अल्लाह ने। फिर जाके और कितना कुछ दिया। सबसे बड़ा जो दिया वो क्या? ईमान। सबसे बड़ा जो दिया वो क्या है? ईमान। जर्रा बराबर ईमान। आपके यहाँ तो टीन के घर नहीं है, हमारे बांग्लादेश में बहुत है। टीन के घर होते ना, टीन को आप उर्दू में क्या कहते हैं? लोहा, ऊपर में टीन, उसकी सुराख से थोड़ी सी धूप की एक छिटके आते हैं ना, उसमें कुछ उड़ना नजर आते हैं। देखे आपने? कुछ उड़ता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा। जिसको यूं देखना पड़ता है, उसको अगर कहा जाए जर्रा, समझाने के लिए हो सकता है। इस जैसा बराबर ईमान अगर किसने लिया, अल्लाह 10 दुनिया बड़ा जन्नत से उनको इज्जत फरमाएंगे। इतना बड़ी नियामत। फिर जाके ईमान ही नहीं दिया, हमें क्या बनाया? अफजलुल उमम। क्या? अफजलुल उमम, नबी की सरदार, नबी की सरदार उम्मत, सरदार नबी की सरदार उम्मत बनाए। फिर उम्मत ही नहीं बनाए, उम्मत 2 किस्म का है, उम्मत इजाबत और उम्मत क्या? दावत। हमें अल्लाह ने नबी के काम समझने की तौफीक अता फरमाया, और नबी के काम को संभालने के लिए अल्लाह ने 3 चिल्ला देने की भी तौफीक अता फरमाया, लोगों के पास जाने की तौफीक भी अता फरमाया। ये सादत बुजुर्ग बाजू नहीं, ये अपना कमाया हुआ सरमाया नहीं है, बल्कि क्या है? हिबा मिन इंदिल्लाह, अतिया मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है। मेरे भाई, इस उम्मत को अल्लाह कितनी बड़ी नेमत अता फरमाया। बहुत से नबी होंगे उनके पास एक उम्मत, किसी के साथ कोई नहीं। इस उम्मत में बहुत से ऐसे होंगे कि उनके पीछे हजारों लाखों आदमी जन्नत में जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने हमें नबी के काम अता फरमाया, एक जिम्मेदारी अता फरमाया। ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है जब हम अल्लाह के रास्ते में होते हैं तो घर घर जाना। हजरत मौला अलैहि सल्लम फरमाया करते थे, रलना मलना खुशामद करना ये हमारा काम है।
रलना मुलना खुशामद करना, ये हमारा क्या है, काम है। जब हम अल्लाह के रास्ते में होते हैं तो कभी खुसूसी गाश्त, कभी उमूमी गाश्त, कभी तश्कीली, कभी तहसीली, कभी क्या तालीमी गाश्त करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, मन्नत समझत करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, भाई सबसे बड़ी सौगात ईमान है, ले लीजिए। ऐसा नहीं है, ये जिंदगी की मसला है। किसका मसला? जिंदगी की मसला है, और दुनिया जब तक रहेगा उस वक्त तक की मसला है। हजरत भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, हर उम्मती जिम्मेदार है पूरे आलम के हत्ता यौमुल क़ियामा। इसलिए मेरे भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। कैसे? रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक साहबी फरमाना है, कहते मैंने देखा रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर रहे हैं, दावत दे रहा है, लोगों को कहना है, लोगों कलीमा पढ़ लो, कल कामयाब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कामयाब। अब लोगों की हालत यह है, फमिनहुम मन तफला अला वजही, कोई तो उनके चेहरे में थूक दे रहा है, वमिनहुम मन हसा अलैहि तुराब, कोई मिट्टी लेके फेंक रहा है, वमिनहुम मन सब्बा, यानी पागल है, जादूगर है, काहिन है, ये कुछ कर रहा है। लेकिन रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टील एक जगह पर खड़ा हुआ है। लोग आते जाते रहे, देखते रहे तमाशा, लोग बदलते गए, लेकिन रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जगह पे खड़े हुए। कहाँ तक? बिल्कुल दोपहर तक। फिर जाके सब ने कहा छोड़ो, सब चले गए। रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला खड़े रहे। हाय हाय, किसी ने सुना नहीं, किसी ने माना नहीं, किसी ने लिया नहीं। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं? इस बेकसी और इस बेबसी की हालत में रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला बिउस्सिम मिम्मा, एक प्याला पानी लेके आए। रसूल मक्बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे चेहरा मुबारक धोया, हाथ धोया, देखा बेटे की तरफ चेहरा बिगड़ा हुआ था। कौन सह सकते हैं अपने बाप की हालत देख के, बर्दाश्त कर सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान लगे, ला तखाफी अला अबीकी गीलतन, अपने बाप के बारे में ये अंदेशा ना करना कि आपके बाप को बेइज्जत या कत्ल कर डालेगा। दूसरी रिवायत में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में है कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला देख रहा है कद इखला व लक़त वजहु, नबी के चेहरा बिगड़ गए, बदल गए, कपड़ा वगैरह सब कैसा कैसा हो गए, रोने लगे, पेशानी में गुस्सा देने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इन्ना दीन आबाक, तेरे बाप के दिन हर कच्चे से कच्चे, हर पक्के से पक्के, बेइज्ज़ अज़ीज़िन व बिज़िल्ल दलीलिन, इज्जत वाले इज्जत के साथ लेंगे, अगर ना बेइज्जत के साथ क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हर जगह पहुंच जाएंगे। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम हमारा काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हदफ, टारगेट, उर्दू में क्या कहते हैं, टारगेट, मकसद, हमारा मकसद है। इमाम साहब 4 रकात, हम कितनी रकात की नियत करेंगे? ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा है इमाम साहब 4 रकात, हम क्या 4। अच्छा, इमाम साहब का किसी वजह से कुछ हो गया, होते हैं ना, आदमी है, इमाम साहब चले गए, उसकी जगह में कोई खड़े हो गए, नायब है इमाम का, कितने रकात पढ़ाएंगे? 4। हम नबी के नायब है, नबी की नियत हमारी नियत। इमाम साहब क़िबले की तरफ रुख करते हैं, हम किसकी तरफ करेंगे? क़िबले की तरफ। इमाम साहब रुकू में, हम कहाँ? रुकू में। इमाम साहब सिजदे में, हम कहाँ? सिजदे में। नबी की नियत हमारी नियत, नबी के काम हमारे काम। नबी की नियत क्या है? नबी की नियत ये है जिसको अल्लाह ने फरमाया कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा गया क़यामत तक आने के लिए, तक आदमियों के लिए। हम भी मेरे भाई पूरे दुनिया के लिए, ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान के लिए है या बांग्लादेश के लिए है या इंडिया के लिए है या उसके लिए, नहीं नहीं नहीं, हम क्या है? काफ़तल लिन्नास, पूरे आलम के लिए, क़यामत तक जो आने वाले हैं। इसलिए हज़रत मौला अली हसन बहुत अच्छे अंदाज से फरमाते थे, एक खड़े हो जाओ लाखों खड़े हो जाएंगे। अगर इस काम को किसी एक ने समझा और जिंदगी के मकसद बनाया तो अल्लाह ताला उसकी वजह से एक नहीं लाखों को खड़े कर देंगे। और समझने के बाद ये करने के लिए कुछ ये चाहिए, वो चाहिए, ये ज़बान हो, तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कोई इस्तेदाद नहीं चाहिए, कोई इस्तेदाद नहीं चाहिए। हम सल में चल रहे थे बांग्लादेश में, उस वक्त हम एक पठान जमात के साथ चला, तो उस वक्त हमारे यहाँ 4 जमात एक साथ आए, एक हल्का की,
کس کی؟ ایک حلقہ کی 4 جماعت. ہم نے کہا ایک ہی دن ایک حلقہ کی 4 جماعت بنگلہ دیش میں آ گئے 7 مہینے کے لیے. کہتے مولوی صاحب تم کو پتا نہیں ہمارے حلقہ سے 13 جماعت نکلا ایک ہی دن. کتنا جماعت؟ 13 جماعت. ہم نے کہا واہ واہ کتنا کام ہے. لیکن عامر صاحب نے بہت اچھے آدمی ساتھی، اتنا خوش مزاج، اتنا نرم اور اتنا قابل برداشت. اللہ ان کی اگر دنیا میں ہے تو حیات میں برکت عطا فرمائے، اگر مر گئے ہوں تو اللہ ان کے قبر کو ہم جو کہیں گے اس سے زیادہ دے دیں. جو بھی ہو عامر صاحب کرنے لگے. ہم سب کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی محنت کی بدولت جس کے منہ میں ہم کہتے ہیں گونگا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں بولنے میں بھا 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 بھائیو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ تلفظ کر نہیں پاتے. اس کی محنت کی بدولت ہم نے کہا تو پھر کیسے؟ کہتے اس کے دل میں ایک حرارت تھی، ایک پریشانی تھی. کہ پریشانی ہے امت کا نجات کا راستہ تو کھل جائے، ہے امت جہنم سے تو بچ جائے، ہے امت گھر میں بیٹھنے والا نہ رہے. وہ پریشانی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، وہ پریشانی جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھی. کیا تھی پریشانی؟ بیوی صاحب کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی چل رہے تھے، کبھی سو رہے تھے. بیوی نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ کوئی مرض تو لاحق نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر وغیرہ لاؤ؟ کہتے ہیں اگر یہ بات تجھے پتا ہوتا تو جاگنے والے ایک کے بجائے کیا ہو جاتے؟ 2 ہو جاتے. اس پریشانی کے عالم میں ہر روز پورے رات دعا کرتے تھے. دن کو لوگوں کے پاس جاتے تھے، لوگ کہتے چپ کر. عصر کی بات اعلان کر دیتے، ہر روز عصر کی بات کہتے بھا بھا بھا. بھائیوں کرنے سے پہلے سب نکل جاتے تھے ہنستے ہنستے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ. وہ بیچارہ کہتے اللہ میں اپنے زبان کی کمزوری کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے، کسی کو سمجھا نہیں پاتے. اللہ تو سمجھا دے، تو سمجھا دے. اللہ دل کے تالا تو کھول دے، دل میں تو داخل کر دے. میرے دل کی پریشانی اگر میں مجھ سے کہہ نہیں پاتا، اللہ سے کہہ دیا وہ سننے والا ہے. ان کے لیے لسان نہیں چاہیے، ان کے لیے زبان نہیں چاہیے. ایک دن ایسا ہوا، دیکھا کہ علاقہ کے جو پنچایت ہوتے ہیں نا، آپ کے یہاں مربی سربراہ جی، مربی جی نہیں آئے. کہنے لگے بھائی صاحب مربی کا کیا ہوا؟ کہتے پتا نہیں وہ 2 دن سے بیمار ہے، بخار ہے. اللہ 2 دن سے بخار ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میں کیا نبی کے کام کرتا ہوں؟ نبی کے کام کے لیے پہلے یہ ہے اس طرح کہ ہر آدمی کے حالات ان کے سامنے ہوں. آج اس نے گندم کھیت میں بدلا دیا، روپیہ ملا، اتنا بڑا پاپیا خریدا، کندھے پہ لا کے شام کے مغرب پڑھ کے دعا کر کے اللہ اس کو واسطہ بنا کہ ہمارے کام کھل جائے. تو نے تیرے نبی نے دعا کیا اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے دل کی تالا تو کھول دے اور میرے کام کی معید بنا دے. میں نبی کی تابع ہو کے دعا کرتا ہوں، ہمارے سردار جی کو صحت دے کے میرے باغ کو چلانے کے لیے ان کو سبب بنا. دعا کر کے گئے، پاپیا اور ان کی حالت دیکھ کے کہنے لگے کہاں ملا؟ کہتے پورے دن گندم کھیت میں بدلا دیا، پیسہ ملا اس سے پاپیا خریدا. سردار جی کل رات پوری رات دعا کی آپ کے لیے، اللہ آپ کو صحت دے دیں گے، آج رات بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ بہت اچھے بدن آ جائے گا، صحت آ جائے گا. ایک درخواست ہے. کہتے کیا؟ اگر اللہ صحت دے دے تو میرے کام کے کچھ مساعدت کیجیے. اللہ آپ کا حشر عمر جیسے کریں گے. سمجھایا. کہتے ٹھیک ہے تو دعا فرما، اگر صحت اچھا ہو جاؤں تو میں تیرے کام کے ساتھ دوں گا. بس خوش ہو کے آئے اور دعا کرتے رہے اللہ صحت دے دے، صحت دے دے. اور آج ہی عصر کو عامر صاحب کو یعنی
किसको? सरदार जी को मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाया। देखा कि दुआ का नतीजा निकल पड़ा। मोमिन जब दुआ करते हैं और दुआ की नतीजा देखते हैं तो उनका खुशी बढ़ जाते हैं, ईमान बढ़ जाते हैं। ईमान क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जब देखा सरदार जी आया, दरवाजा तक गया, उसका जूता उठाया, रखा और सामने लाके बैठाया। कहते सरदार जी आज मैं ऐलान करूंगा, आप थोड़ा मुसादा करना कि साथी बढ़ जाए। कहते ठीक है ठीक है। असर की नमाज के बाद बदस्तूर ऐलान करने लगे, सब हंसने लगे। सरदार जी दरजा पे जाके खड़ा हो गया, कहने लगे ये भी इंसान है, आज 2-3 महीना से ये कुछ करना चाहते, तुम सुनते नहीं हो। अरे अल्लाह ने उसको माजूर किया, तुमको अगर अल्लाह माजूर कर देते। सब बैठ गए। आज तो उनका ईद, आज उनका क्या है? यही। बेचारे पहले तो कुछ कह सकते थे, लखनऊ थी, लेकिन आज बकसरत खुशी के कुछ कहने की मुंह से कुछ निकलता नहीं। कसरत खुशी से लोग कहने लगे क्या कहना है कह दो, मुंह से बात नहीं निकलता, आंख से आंसू निकल रहे। ये आंसू किसकी? खुशी की। या अल्लाह आज कुछ बोलने का मौका मिल गया, लेकिन मुंह मुसादत नहीं करते। सब मिलकर कहने लगे कुछ तो कहा। कहने लगे हम तुमसे 3 दिन मांगते हैं। कितना दिन? 3 दिन। मेरे भाई 3 दिन में ले गए, अल्लाह की मेहरबानी 3 दिन से चिल्ला 3 चिल्ला चला। एक आम की गुठली से पूरे दुनिया के आदमी को आम खिलाना हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक आम से पूरे दुनिया के आदमी को आम खिलाना हो सकता है। वक्त लगेगा। क्या वक्त लगेगा? आम की गुठली को जमीन पे रखिए, दरख्त होगा, उसमें हजारों आम, इस आम हर आम में एक दरख्त, हर दरख्त में हजारों आम। एक आम से पूरे दुनिया के आदमी को आम खिलाना मुमकिन है। अगर ये काम किसी को एक आ जाए, इस काम की हकीकत खुल जाए और इस काम को लेके खड़े हो गए, तो उसको अल्लाह हिदायत की ऐसे चमकदार रोशनी बनाएंगे कि उसके वस्ते से पूरे दुनिया के आदमी को क्या होंगे? हिदायत के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये काम जो है ना, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की काम है। सबसे बड़े नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम है। अच्छा, मैं अपने जमात की कारगुजारी सुना रहा था। उस हमारी जमात में एक भाई थे जिनको उर्दू आता नहीं था, वो पुश्तो बोलते थे। हम तो उर्दू पुश्तो नहीं समझते थे। तो एक दिन मुझे भेजा उनके साथ, वो बयान करते थे, वो उनका मैं मेरा समझता नहीं कुछ। मगरिब के बयान होते थे, वो उस तरफ मैं उस तरफ, तर्जुमा ऐसा ही होता था। और वो कहते थे अच्छा है तर्जुमा अच्छा है। क्या अच्छा है? समझता तो कुछ नहीं। फिर भी एक दिन आमिर साहब ने कहा जे खान साहब उसको लेके आना। गए उनके घर पे तकरीबन 11:30 बजे। उस वक्त हम देखते थे कि जमात के पास एक रुमाल जैसा होता था, रुमाल भी है, चादर भी है, ये सब कुछ है, जानमाज भी है, गुस्ल के वक्त तो सब कुछ है एक ही में। मूसा अलैहिस्सलाम की खिरका जो भी हो, वो उस दर्जा में बिछा के बैठ गए, नमाज पढ़ रहे। हमने खान साहब ये लोगों का घर में आने जाने के रास्ता है। चुप करो, अल्लाह को मनवा रहा हूं। किसको मना रहा है? अल्लाह। वो बेचारा घर में नहीं है तो यहाँ बैठे कि क्या करेंगे? अल्लाह ले आएंगे, अल्लाह ले आएंगे। बैठे रहा। जोहर की नमाज का वक्त हुआ। वो कहने लगा आमिर साहब ने कहा उनको लेके जाना, उनको लेके जाना। मैंने कहा भाई मेरे सामने नमाज है, मैं जाता हूँ। कहते जाओ, मैं यहाँ ही पढ़ूंगा। वो नमाज पढ़ा यहाँ। नमाज के बाद वो बेचारा आया। आने के बाद उनको समझाने लगे। क्या समझाएगा? उर्दू तो बोल नहीं सकते। मैं भी उनके से बात करता हूँ इशारा से। कहा जो कहा, वो बेचारा गुस्सा हो गया। वो जितना गुस्सा होता है वो उतना नरम होता है। गुस्सा चलता नहीं जब आदमी नरम हो जाते हैं। अरे क्या, वो बेचारा गर्म हो के उनको मारने के आए। अगर कोई कही हमारा मरेगा आदमी, बेचारा ठंडा हो गया। मैं गया। जाने के बाद कहने लगे कि आमिर साहब ने कहा उनको लेके जाना, उनको लेके जाना। वो तो बहुत गर्म है। खड़े हो गए नमाज में। उधर सब लोग तमाशा देख रहे हैं, औरत वगैरह सब देख रहे हैं। क्या है ये?
समझ बुझ कुछ है। मैंने कहा देखिए ये आपके बदल नहीं जाएगा, नमाज के लिए भी नहीं जाएगा क्या, चलिए आप। कहते मेरे अभी जाने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा आपको छोड़ के वो नहीं जाएगा, आप नहीं जाएंगे खुदा की गजब आ जाएगा। ये ऐसे आदमी है कि देखिए नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ता है रहेगा पूरी रात। वो कहने लगे रहेंगे जब तक अमीर साहब का हुक्म ना आए। अमीर साहब ने कहा उनको लेके आना, जब तक दूसरा हुक्म ना आए वहीं रहूंगा। मैंने कहा भाई उनको छिड़िए मत, चलिए। उनको बोला ये रात तक रहेगा। वो कह रहे रात तक रहेगा, कहा क्या करेगा? मैं क्या नमाज पढ़ेगा, तो खाना था ना, उनको खाने की जरूरत नहीं है। बेचारा अंदर गए, औरत क्या समझाए, बिस्तर ले आए, आ गए। मेरे भाई असल बात यह है दिल में अगर फिक्र हो तो अल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम मेरे भाई जहां रहें, ब्लेड जहां रहते हैं क्या करते हैं, काटते हैं। हम भी जहां रहे क्या करेंगे, बातिल को काटेंगे, ताकि हर एक के दिल मखलूकात के असर से पाक होके अल्लाह से जुड़ जाए। नबी की सुन्नत की बिदन उनका चारा ना हो। नबी की सुन्नत छोड़ जाए और मैं रहूं, हो नहीं सकता। जिंदगी का मकसद आखिरत हो जाए, क्या हो जाए, आखिरत। आमाल के शौक और ज़ौक ऐसा हो जाए कि आमाल उसको खींचे, आमाल उसको क्या करे, खींचे। नबी ने एक दुआ सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, कि अल्लाह मैं मांगता हूँ कि आमाल मुझे खींचे, मैं भी आमाल को खींचूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौफीका लिमहाब्बिका मिनल आमाल, आमाल मुझे क्या करे, खींचे। कहने लगे अम्मी जी, कहते क्या, कहते आखिर रात को अगर पैखाना लग जाए ना तो मुझे बेदार कर देना। छोटे बच्चे कहते हैं ना, आपके यहाँ कहते हैं नहीं है, हमारे बांग्लादेश में कहते हैं अम्मी अगर पैखाना लग जाए ना तो मुझे बेदार कर देना। तो माँ ने कहा बेटा अगर तुमको पैखाना लग जाए तो तुम सबको बेदार कर दोगी। अगर दिल में मेरे भाई ईमान के छक्का लग गया, दिल ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन, यहाँ ईमान की आँख आ गया, ईमान की कान आ गया, ईमान की मजा आ गया, देखेंगे कहाँ तहज्जुद, अरे कहाँ फजर, कहाँ इशरा, कहाँ चाश्त, कहाँ जवाल, कहाँ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग और सोहर की सुन्नत, कहाँ असर की सुन्नत। मुझसे तो छूटेगा नहीं, ऐसा मेहनत होगा इस इलाका के किसी से ना छूटे। हमारे बड़ों की मेहनत के नतीजा आप सुने होंगे कि इतना मेहनत किया, हर एक पर बादशाह तक इस बात के आदी हो गए कि असर की सुन्नत ना छूटे, असर की सुन्नत ना छूटे। रहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस आदमी पर रहम करे जो कि असर से पहले 4 रकात पढ़े। अच्छा, रोजाना जिसको नबी की दुआ मिलता है उसका जिंदगी क्या होगा, फूल फूल, उसका जिंदगी क्या होगा, फूल। आसानी से जिंदगी होगा, मजेदार जिंदगी होगा, आराम और चैन की जिंदगी। आप दावत दे देते, आदमी बनाते बनाते हज़रत मौला रहमतुल्लाह फरमाया करते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, कौम छोड़ के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलम छोड़ के जा रहा हूँ। मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, आलम। अब अल्लाह वाला बड़े मियाँ बड़े आलम का इंतकाल हो चुके हैं, सुने हैं ना, बड़े आलम का नाम शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनका शागिर्द है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक सफर में 90 लाख आदमी मुसलमान हुआ। उस्ताद जी ने दुआ कर दिया, जा आज से तेरे तरफ जो देखेगा, तुझे जो जिसको देखेगा हिदायत की नियत से अल्लाह उनको हिदायत दे देंगे। मेरे भाई अब उस्ताद जी का इंतकाल हो गया, लेकिन मरते वक्त वसीयत किया, मेरे जनाजा वो आदमी पढ़े जिनको जिंदगी में तहज्जुद का जाना हुआ, जिनको जिंदगी में क्या ना हुआ, कबीरा गुनाह ना हुआ, जिनको जिंदगी में असर की सुन्नत ना छूटा, चंद वसीयत करके मर गए। अब अल्लाह वाले जो होते हैं, हदीस में आते हैं अल-अत्किया अल-अख्फिया, अल्लाह वाला कौन है, जो अपने को छुपा के रहते हैं, अपने को पेश नहीं करते। हर साल 4 महीने लगाता हूँ, क्या कहते हैं, नहीं मेरे भाई, बात में नरमी, बात में क्या है, नरमी, तवाज़ो, लीनत। क्योंकि हमारा काम है खूबियों की लेन देन। क्या भैया, खूबियों की लेन देन। आज मेरे अंदर खूबी ना हो तो कैसे खूबियों के लेन देन होंगे।
अब खादिम साहब ने कहा मजमा हो गए, बहुत बड़े मजमे। खादिम ने क्या कहा, हजरत की जनाजा वो पढ़ाएंगे जिनके अंदर ये सिफात है। अब कोई कहेगा मेरे पास ये सिफत है, नहीं, कोई नहीं ये कहेगा। करके क्या करेंगे, हर एक अपने को छुपाएंगे, हर एक अपने को छुपाएंगे, कोई नहीं कहता। अब बादशाह कहने लगे कि मैं तो फंस गया, अरे मुझे अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया, कोई कहे या ना कहे मुझे तो उसको संभालना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब सिफत हासिल है, ना तहज्जुद छोड़ता, ना कबीरा गुनाह होता, ना असर की सुन्नत छोड़ता। मेहनत कितना किया कि एक बादशाह मेरे भाई आमाल के इतने पाबंद हुए। हमारे भी मेरे भाई जहाँ रहे मकाम में हो तो मकामी अमल ऐसे अंदाज से क्या, रोजाना हर एक के पास इस अंदाज से मेहनत के क्या ना छूटे, जमात ना छूटे, मशवरा ना छूटे, रोजाना 2.5 घंटा उनको ना छूटे। और ये काम अकेला करने की नहीं है बल्कि हर एक को लेके करना है, इसलिए जमात बनाना। क्या बनाना, जमात बनाना। हर एक को मस्जिद में लाना, गोया कि उनकी जिंदगी को मुनव्वर करना, उनकी जिंदगी को क्या करना, मुनव्वर करना। मेरे भाई उनकी जिंदगी को सहूलत से भर देना, उसकी जिंदगी को आइश आशरत से भर देना। क्यों, मस्जिद है मंबाउर रहमती वल हिदायती वल बरका। मस्जिद हिदायत, रहमत, बरकत की क्या है, जगह है। कारण के पावर हाउस से ताल्लुक ना जोड़ के बत्ती लगाया, पंखा लगाया, ये लगाया, वो लगाया, बटन दबाते हैं, काम नहीं करता। क्यों, पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। हम भी सहाबा की जिंदगी सुनते हैं, अल्लाह बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। क्या बरकत है, एक बच्ची थोड़ा कुछ खेजूर वगैरह लेके आए, किसके लिए, मामा और बाबा के लिए। माँ ने, अम्मी ने भेजा, जाओ। नबी देख के कहने लगे, बच्ची तेरे, हम उसको क्या कहते हैं आप लोग, तेरे थैली में दामन में क्या है, कहते मामा और बाबा के लिए नाश्ता है, चंद खेजूरे। नबी ने कहा इस दस्तरखान में डाल दिया। अब 200-250 आदमियों को नबी कहने लगे, सब आ जाओ नाश्ता करो। नाश्ता है 2 का, कितने करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कहने लगे मेरे शर्म आता है, अगर मैं अल्लाह को कहता अल्लाह पूरे सफर खिला तो अल्लाह पूरा सफर खिलाते। उनका नाम क्या है, बरकत। उनका नाम क्या है भैया, बरकत। हमने सुना है कि 1 प्याला दूध कितने पिया, 17 आदमी, उसका नाम क्या है, बरकत। क्या है, बरकत। नबी ने दुआ फरमाया, अल्लाह मक्के में तो बरकत दे दिया, आबे जमजम, हम कहते हैं ना आबे जमजम, कुआं की पानी सब मिलके एक ही है। तो जमजम के पानी कितना आदमी, कितना लाखों खाते हैं। पिछले साल हम एक अखबार में देखा 77 लाख आदमी इस साल बैतुल्लाह में आए, 77 लाख, सबने जमजम का पानी पिया, खत्म हुआ। उनको बरकत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, बरकत कहते हैं। आपके मुल्क में आने के बाद से शुरू हुआ खास बकरी का गोश्त, हर रोज बकरी का गोश्त। बकरी का बच्चा कितना होता है, 2, 3, बहुत कम, 2 ही होता है, 3 कम होता है। हम एक जगह से जा रहे थे, लोगों की हुज्जुम, तो किसी ने पूछा भाई क्या है, हमने कहा भाई हम उसके देखने के लिए नहीं आए। लेकिन आदमी हर एक किस्म को होता है ना। एक ने कहा मैं जाके देखता हूँ। देखता है फी सबीलिल्लाह खेजूर देते हैं, अरबी में कहते हैं सबील। क्या कहते हैं, सबील। वो बेचारा कुछ खेजूर लेके आए। हमने कहा इतने तकलीफ करके गया, चंद खेजूर लेके आया, फिर गया एक कार्टून लेके आया। हमने कहा भाई तेरा अकल वगैरह कुछ नहीं है, अगर अकल होता तो गाड़ी को स्टार्ट दे के पूरा गाड़ी ले आता। दिया ही तो मांगना, फ्री। क्या दिया, फ्री। इतना देना, इतना खाना रमजान महीने में, या अल्लाह, जो मक्का मदीने में गए होंगे देखे होंगे अपने आंखों से, मस्जिद के सहन में दस्तरखान, फिर जाके चाय, कहवा, ये वो, आखिर रात में कितना कुछ। इतना होने के बाद खजूर की कमी हुई, बरकत। क्या है, बरकत। अब बरकत चाहिए तो, अगर बरकत चाहिए तो बरकत की पावर हाउस में कनेक्शन देना पड़ेगा। वो क्या है, मस्जिद। हर एक को, मर्दों को मस्जिद में लाना, औरतों को घर के मस्जिद के साथ कनेक्शन जोड़ देना। हमारे बड़े फरमाते हैं हर मर्द की कनेक्शन मस्जिद से हो, हर बच्चे की कनेक्शन मस्जिद की
क्या मकतब, आप लोग क्या कहते हैं मकतब, उससे हो हर औरत के कनेक्शन, घर की तालीम, घर की मस्जिद और हफ्तावार इज्तिमाई तालीम होते हैं, उससे हो जाए। हमारे मेरे भाई, तो एक तो है जमात बना के रोजाना कितने काम, 3 काम, कितना 3 काम। एक काम क्या है, घर घर मेहनत करके लोगों को आमाल नूरानी के लिए तैयार करना, आमाल नूरानी के लिए तैयार करना, आमाल दावत को जिंदा करने के लिए, बकौल हज़रत मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आमाल दावत को जिंदा करने के लिए घर घर मेहनत करना, फर्द फर्द मेहनत करना। लेकिन इस मेहनत के लिए क्या चाहिए, हमारे पर फरमाते हैं दिल लो दीन दो। पहले क्या लो, दिल, हाँ दिल लो दीन दो। जो बीमार पड़ गए, अस्पताल में गए होंगे, आप डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इंजेक्शन पुश करने से पहले अगर मोटा आदमी होता है ना तो यहाँ बांधते हैं डॉक्टर साहब। लोग कहते भाई बांधते क्यों हो, कहते बीमार आदमी बात ना करना, बांधते इस वजह ताकि ये रखे हो जाए, बाह पड़े, देखने में आ जाए। फिर जाके कनेक्शन से हो गया, आप बिस्मिल्लाह रहमान दवा पुश करते हैं। हमारे भी काम है लोगों को दिल लेना। दिल कैसे लेंगे, आप लोग माशाअल्लाह सेठ जी है, वैसे गाड़ी है, जा रहा है बाजार में, आपकी पड़ोसी की पड़ोसी की पड़ोसी और दोस्त कद्दू, आप लोग क्या कहते हैं, कद्दू सर पे लेके बाजार जाना है बेचने को। जब देखा ये जा रहा है, ड्राइवर को कहा ड्राइवर गाड़ी रुक ले, गाड़ी से नीचे उतर के कहते कहाँ जा रहा है भाई, बाजार जा रहा हूं जी। अच्छा उठ जा, गाड़ी पे चढ़ाया, फिर जाके क्या किया, पसीना, फिर जाके कहा ड्राइवर पानी भी है, कहते हाँ पी लो। अच्छा बादल खान तेरा कद्दू जो है ना बहुत पसंद हुआ, मुझे 2 कद्दू दे देना, ये ले रुपया। सीधा कहा बाजार में, अंदर जाके खुद टोकरी उतर रहा है। लोगों ने कहा क्या, फिर कद्दू भी बेच रहे हैं, कहते नहीं नहीं मेरे क्या है, पड़ोस है, मेरे भाई है, चाचाजाद भाई है, उनका कद्दू बहुत अच्छा है, मैंने 2 लिया, आप भी ले लीजिए। सुन बादल खान, ये सब बेच के मेरे दुकान पे आ जाना, नाश्ता वगैरह तैयार। मैं जाके कहने लगा मेरे चाचाजाद भाई आएंगे, उनकी हालत ये है, जब आएगा चाय और क्या बिस्कुट तैयार होना पड़ेगा। आया, चाय पिया, बिस्कुट खाया, फिर जाके मैंने उनको गाड़ी से वहां पहुंचा दिया। कहा सुन कितने दिन बाद लाव कद्दू करते हैं, कहते 3 दिन 4 दिन, जिस दिन तुम लाव काटोगे ना मुझे कहना, शाम को सुबह एक साथ जाएंगे, भाई है, क्या है भाई है। आज उनको ये किया, कल जब उनके घर पे जाके कहेंगे बादल खान घर में भी हो भैया, वो आएगा, घर में जितने हैं सब आएंगे, ठीक है जी। उसको कहते हैं दिल लो दिन दो। मेरे भाई फिर जाके हर एक से तारुफ, अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, इकरामुल मुस्लिमीन से को कहते हैं, हर एक को अपने पोजीशन में रखना। तो जब हर एक से ताल्लुक हो जाएगा तबलीग का काम आसान हो जाएगा। लेकिन पहले किस पर करना है, पहले करना है अपने साथियों पर। ये नहीं भाई मैं तो बड़े हजरात हूं, शेख हो, ये हो, थकान आ गया, नहीं नहीं, इस मैदान में कोई थकता नहीं, इस मैदान में कोई क्या नहीं थकता नहीं। जितना ये हजरत मौलाना इस्लाम फरमाया करते थे, ये कान है जितना खोदोगी उतना पाओगी। इस मैदान में जो जितना करते हैं और भी करना चाहते हैं, इसलिए हदीस में आते हैं लन यशबअल मोमिन, मोमिन कभी आसूदा नहीं होता, मोमिन कभी आसूदा नहीं होता, जैसे कि दुनियादार आसूदा नहीं होता। मैं दुकान का मालिक हूं, ग्राहक बहुत है, बज गए 8 बजे दुकान बंद करना की वादा है। मेरे पास मेरे जो नौकरी है ना, खादिम वगैरह नौकर, वो 7-8 है, सब क्या कहने लगे जनाब 8 बज रहा है। मैं क्या कहूँ, तुम अगर सब चले जाओ कोई बात नहीं, मुझे रहना है। क्यों, ग्राहक है, ग्राहक है, ग्राहक क्या है, 12 बज गए कोई बात नहीं, क्यों
फाइनल फायदा इलैकल आयदा, नफा किसको है? मेरे भाई, दाई कभी थकता नहीं, मोमिन कभी थकता नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी रात का थका हुआ मुसाफिर, पूरी रात का थका हुआ मुसाफिर, गली गली में खोज करते हैं, देखते हैं हालत क्या है। सुबह फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं, कभी कभार सूरह कहफ भी पढ़ते थे, रोते भी थे। फजर के बाद ये नहीं भाई मैं थका हुआ हूँ, मुझसे होता नहीं, तुम कर लो, नहीं नहीं, वो सबसे आगे, वो सबसे क्या है? आगे देख रहा है कौन है कौन नहीं है। अरे हमारे साथियों में से सुलेमान तो है नहीं, कहाँ गया? ये नहीं आप और आप जाइए, बल्कि क्या, खुद मैं जाऊंगा। ये उमर, ये क्या है? उमर है। जिस रास्ता से जाता है शैतान भागता है। दरजा में जाके दस्तक देने लगे, सुलेमान, ओ सुलेमान, आवाज नहीं आता। आखिर क्या करेंगे? उम्मी जी देखने लगे ये उमर है, छोड़ेगा नहीं। दरजा के किनारे शर्म के मारे कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, बेटा पूरी रात तहज्जुद पढ़ते थे, फजर से पहले नींद गालिब आ गए, घर में फजर की नमाज पढ़ा, सो गया, आपके बुलाने से उठेगा नहीं, अभी अभी सोया, पूरी रात का थका हुआ मुसाफिर अभी अभी सोया। अरे सुलेमान की माँ सुन लो, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने से बेहतर यह है फजर की नमाज और इशा की नमाज कहाँ पढ़े? मस्जिद में। क्यों? मस्जिद मंबा और रहमती वल बरकती वल हदाया, रहमत और बरकत की जाए सेंटर कौन है? मस्जिद है। मस्जिद में तकाजा आते हैं। हमारे बांग्लादेश में कहते हैं, आपके यहाँ तो हमें नजर कम आया, एक है समंदर, एक है दरिया, एक है दरिया से शाखे, हम उसको कहते हैं खाल, नहर है जी, नहरे। नहरे का ताल्लुक अगर किससे ना हो, समंदर से ना हो, नहर मर जाएगा। समंदर का ताल्लुक अगर दरिया से ना हो तो समंदर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एक दिन लोग कहेगा यहाँ एक नहर था, बस कुछ नहीं। लोग कहेगा यहाँ क्या थे? नदी यानी दरिया थे, आज नहीं। क्यों? समंदर से ताल्लुक कट गया। जिसका ताल्लुक मस्जिद से कट गया उसकी जिंदगी में हाय हुताश, ये नहीं है, वो नहीं है, ये। और जिसकी जिंदगी ताल्लुक मस्जिद से है उनकी जिंदगी में चैन सुकून, और मस्जिद की होगा, रोजाना तरक्की करेगा, रोजाना तरक्की करेगा। इसलिए मेरे भाई हर एक के ताल्लुक किससे? मस्जिद से। मस्जिद से ताल्लुक जोड़ने के लिए आता है जाता है तो नबी फरमाते हैं सुबह और शाम वो मस्जिद में आते हैं जाते हैं, उनके लिए अल्लाह जन्नत में मेहमानदारी के बंदोबस्त करते हैं। अरे जन्नत में खिलाएंगे, दुनिया में ना खिला के मरेंगे? ये नहीं हो सकता। जन्नत में खिलाएंगे, दुनिया में खाने की आदी बनाएंगे। अगर दुनिया में खाने की आदी ना हो तो जन्नत में जाके खाना देके खा नहीं सकेंगे। अल्लाह खिलाएंगे, अल्लाह क्या करेंगे? खिलाएंगे, पिलाएंगे, आराम से रखेंगे। जो भी हो, एक तो है मेरे भाई पहले हमारे जमात पर मेहनत, जमात पर मेहनत अच्छे अंदाज से होने के लिए सबसे पहले चाहिए हुस्न ज़न। क्या चाहिए? हुस्न ज़न। हजरत मौलाना फरमा करते थे आपस के हुस्न ज़न अल्लाह की दहाने खुलवाने की बेहतरीन मिफ्ताह रहमत है। इसलिए आपस में क्या हो? हुस्न ज़न। किसी के बारे में बदज़न्नी ना आए। बदज़न्नी आ गया फिर जाके तजस्सुस शुरू होगा, तजस्सुस शुरू हो जाएगा फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता मसला गड़बड़ बन जाएगा। बल्कि हर एक के बारे में क्या हो? हुस्न ज़न। मेरे भाई उज़्र ना होते भी नहीं उज़्र कर लेना। अगर कोई हो गया तो अपने को कसूरवार समझ के उनकी कोताहियों को ढांपना, उनकी कोताहियों की क्या? ढांपना। अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया कि ये काम जिसने किया उनको चाहिए कि उठ के वज़ू बना ले। हजरत इमरान इब्न हुसैन ने फरमाया हजरत अगर हम सब मिल के जाके वज़ू कर ले। कहते इमरान तो जाहिलियत के ज़माने में सरदार था, आज भी सरदार। लोगों की हुस्न ज़न, लोगों की पर्दापोशी मुझे क्या बना देंगे? सरदार। क्या बना देंगे? सरदार। अच्छा, एक तो है साथियों उसने हुस्न सलूक, हुस्न ज़न और साथियों को अपनाना। मुजाहिदा किस पर? अपने ऊपर। मुजाहिदा किसके लिए? अपने लिए। साथियों के लिए क्या? सहूलत। साथियों के लिए क्या? सहूलत।
जी भैया, तो एक तो है साथियों पर मेहनत, दूसरे है इलाका के हर आदमी पर मेहनत। इसके लिए क्या चाहिए? हमारे बड़े फरमाते हैं कि कितने साथी वक्त फारिग करते हैं और इलाका की हालत क्या है। इलाका के लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को हमारे बांग्लादेश में शाम को नहीं मिलता, शाम हो फजर को नहीं मिलता, सुबह हो क्या कहते हैं, सुबह सवेरे हो खेत में चले जाते हैं, शाम को मिलता है। जो तिजारत करते हैं उनको शाम को नहीं मिलता, सुबह मिलता है। तो इलाका के लोग कैसे है, उसके अंदाज से वक्त फारिग करना। ठीक है, हमने सुबह वक्त फारिग किया, शाम को वक्त फारिग किया। कितने साथी हैं? कहते हैं हम 12 हैं। उनमें कितने साथी बात कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं? कहते 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। अच्छा, जितने आदमी हैं उस अंदाज से इलाका को तकसीम करना, उस इलाका को क्या करना, तकसीम करना। मेरे और मेरे भाई की जिम्मा में आए ये इलाका। कितने घर हैं? कहते तकरीबन 75 घर है। हमारे बड़े फरमाते हैं हर 15 दिन में एक घर से मुलाकात तो जरूर हो जाए। तो 5-15 75, 5-15 75, रोजाना कितना घर? 5। इस घर में जाके ऐसा नहीं हमारे बांग्लादेश में करते हैं, रास्ते में बात कर लेते हैं, नहीं नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं, जम के बैठ के 6 सिफात के सामने रख के बात करना, फिर तश्कील सुनाना कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन की एलाए कलिमातुल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मर्दों की भी है, औरतों को भी है, बच्चों की भी है, हर आदमी को है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते होंगे कितने लोग साल में चल रहा है, उलमा इकराम साल में चल रहा है, और 7 महीने की जमात तो निकलता ही है, 4 महीने की तो आजकल आम हो चुके हैं, चिल्ला तो हो ही रहा है, 3 दिन के लिए भी जमातें निकलते हैं। आप भी कुछ नियत कर लेना, आप भी कुछ नियत कर लेना। क्यों? नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से क्या है? बढ़िया है। पहले उनको कहाँ पकड़ना है? जिस सीढ़ी पे वो है, बेचारा नमाज नहीं पढ़ते, पहले तश्कील नमाज की, नमाज की अहमियत बयान करना, ना पढ़ने से क्या क्या नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने लग चुके हैं, उनकी तश्कील है हर साल 4 महीना बेरून की, जो जहाँ है उनको सामने बढ़ाने की कोशिश, उनको सामने बढ़ाने की कोशिश। एक तो ये है मेरे भाई, रोजाना मेहनत कर करके हर एक को मस्जिद से जोड़ना, हमारे मस्जिद से जुड़ना, और हर एक को सामने बढ़ाने की कोशिश करना। हर एक को बढ़ाना, अपने को भूल जाना नहीं, नहीं, अपने को भी बढ़ाना, अपने को भी बढ़ाना। दूसरी ये है मेरे भाई, इस 75 घर से 3 दिन की जमात भी निकालना, चिल्ले की जमात भी निकालना, और 4 महीने की जमात भी निकालना, बाहर मुल्क की जमात भी निकालना। अगर मेहनत करने वाले, कुर्बानी करने वाले जमात किसी चीज को जमीन पे फैसला कर ले, असबाब अल्लाह आसमान में मुहैया फरमाते हैं। कुर्बानी वाला जमात ने क्या फैसला किया? जमात निकलना है, कोशिश करना है, कोशिश कर रहा है, दुआ कर रहा है, जमात निकालेंगे कौन? अल्लाह। इसलिए हम अपने टारगेट लेके मेहनत करते जाएंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे इलाका के इलाका बदल जाएंगे। कौन बदलाएंगे? अल्लाह। हमारा काम है मेहनत करना और दुआ करना, मेहनत करना और क्या करना? दुआ करना। बाकी सब कुछ किसकी जिम्मा? अल्लाह की। रोजाना घर घर मेहनत करके हर घर में तब्दीली, हत्ता कि घर में तालीम चालू हो जाए, और तालीम गाहे 6 सिफात भी चालू हो जाए, उसके लिए फिक्र करना मेरे भाई। जो जहां है उसको सामने बढ़ाने के लिए फिक्र। फिर जाके गाड़ी रास्ते में चलते हैं तो पेट्रोल कहाँ लेते हैं? पंप से, ठीक है ना जी। हमें भी ये जो घर जा जाके दावत देंगे, क्या कहेंगे? हमारे पेट्रोल पंप, ज़ाद राह, तालीम के हल्का, क्या? तालीम के हल्का। हर साथी अपने लिए जिम्मेदारी समझे कि मुझे तालीम के हल्का में बैठना है, तालीम के हल्के में बैठना है, हर एक को बैठाना है। काम कैसे करेंगे? रोजाना प्लान प्रोग्राम जो आज किए उसको करके सुनाएंगे, सामने क्या करना है उसके लिए सोचेंगे। आने वाले जमा की नुसरत, जो अल्लाह के रास्ते में गए हुए उनकी क्या करना? घर की खबर लेना। और गए हैं चिल्ले में, कोशिश ये हो घर और बाहर, हमारे जमात और घर की हर एक का फिक्र हो कि बेचारा गए तो चिल्ले के लिए 3 चिल्ला दे के आए, 3 चिल्ला दे के आए। मेरे भाई अगर घर को तैयार कर लिया, फिर जाके 25वां दिन 26वां दिन हमारे मस्जिद और जमात जाके कहाँ जाके नुसरत के लिए गए,
नुसरत करने के बाद 3 दिन के बाद आने से पहले कहने लगे, जी जनाब हम तो बहुत बड़े तवक्को लेके आए हैं आपकी ज़ियारत के लिए। कहते क्या? कहते आप आए हैं चिल्ले के लिए, अगर 3 चिल्ला कर लेते बहुत अच्छा होता। कहते हाँ अमीर साहब भी तश्किल कर रहा है, साथी भी तैयार हो रहा है, मुझे भी नीयत है, लेकिन घर बार तो भी है, बीवी बच्चे भी है, हमने तो बीवी बच्चे को तैयार करके गया। कहते बीवी बच्चे से बात कर लीजिए। कहते फ़ोन वगैरह नहीं है, मेरे फ़ोन से बात कर लीजिए। मैंने अपने बच्चे को भेजा, जुबैर बेटा जाओ उस घर में चाची को दे के आओ, चाचा जी चाची से बात करना। फ़ोन लगाया, कहते हैं सब ने पकड़ा 3 चिल्ला की दे। कहले आप साल लगा के आइए, कोई बात ही नहीं। क्यों? घर की तमाम सब कुछ इस जमात की साथी जो है ना मस्जिद की, सब मिलकर हमारे सब बंदोबस्त कर रहा है। करेंगे जी इंशाअल्लाह। रोज़ाना कितना हुआ? 3। हफ्ते में मेरे भाई मकामी काश्त के वास्ते से नगद जमात निकालने की कोशिश। जब ये काम होता रहेगा रोज़ाना, किसी फैक्ट्री की कच्चा माल है, रोज़ाना मेहनत, दावत की मेहनत की एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की कच्चा माल क्या है? रोज़ाना मेहनत। रोज़ाना अगर मेहनत होता जाएगा, देखेंगे हफ्तावार गश्त के दिन नगद नबात इंशाअल्लाह अल्लाह तैयार कर देंगे। लेकिन गश्त के दिन खुद अकेला गश्त ना करना। अगर अकेला गश्त करो ना गश्त छूट जाएगा, तो फिर कैसे? बीबी को भी साथ लेंगे, बच्चे को भी साथ लेंगे। तो क्या बीबी बच्चे मेरे साथ मस्जिद में जाएंगे? मस्जिद में तो नहीं जाएंगे। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलिया ओ बाज़, एक मोमिन दूसरे मोमिन, मर्द और क्या औरत एक दूसरे के लिए क्या है? मुसाइद है, मुमीद है, मुआविन है, मुइन है, क्या है? मददगार है। बीवी साहब कहने लगे काश कल मकामी गाश्त है। कहते हाँ जल्दी आराम फरमा लीजिए, जल्दी आराम फरमाइए। आज तहज्जुद के आखिर वक्त तो 4:26, मैं आपको 3:45 बजे बेदार कर दूंगा। उठना है। रोज़ बरोज़ क्या करता हूँ? जगाने की कोशिश करता हूँ, करत बदल के उठता हूँ कि सोता रहता है। आज उठना है, वरना पानी डाल देंगे। अच्छा, बीवियाँ और मियाँ शौहर एक साथ तहज्जुद पढ़ के जब हाथ फैलाता है अल्लाह के पास, अल्लाह को कितना प्यारा होते हैं वो। जी तहज्जुद पढ़ा, जाते वक्त कहने लगे आप तो उमर के वाक़या सुनाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों को देखा, आप भी आँख खोल के देखना कौन आया कौन नहीं आया। अचानक फ़ोन आया, किसकी? मेरी बगल की, मेरी चाचाजाद बहन फातिमा की। फातिमा, अरे शौहर को मस्जिद में भेजा है या नहीं? कहते बहन क्या कहूँ, अभी तो कुट्टा नहीं। अरे आज गाश्त के दिन है। आज क्या है? गाश्त के दिन है, जल्दी भेज। दोपहर का वक्त हो गया, क्या कहने लगे? आज गाश्त के दिन है, जल्दी आराम फरमा लीजिए। नमाज 5 बजे है, 4:15 बजे मस्जिद में जाना है आपको। मैं तो गश्त करूंगा, लेकिन ये क्या है? मुइन। ये क्या है? मुइन। 4:45 4:15 बजे मुझे जगा दिया, चा चो पी के घर में गया, बच्चों को कहा बेटा सब बाप के साथ मस्जिद में जाओ, आज गाश्त के दिन है, कोई प्रोग्राम नहीं। बेटियों को कहा सब मस्जिद में बैठ जाओ, घर में मस्जिद होते ना, खुद भी मस्जिद में बैठ गए। नमाज पढ़ के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, सब तकाजा पूरा कर दिया अल्लाह। मोहल्ले की और क्या इस मुल्क की, पूरे आलम की। दरवाजा में दस्तक आई। बच्चियों ने कहा माँ कोई आया होगा। कहते नहीं, मालूम होता है बाबा ही आया। आज क्यों तेरे बाबा आएगा? आज गाश्त के दिन है, माना है गाश्त असर के 1.25 घंटा पहले से शुरू करके अशा तक। क्यों आ गया? कहते अच्छा मैं देखता हूँ, आज तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, कौन आएगा? दरवाजा खोला, देखा जैसा कहना वैसा। कौन आ गया? बाबा जी आप आ गए, आज गाश्त के दिन है ना। ऐसा पढ़ के आने के बाद थी, छोड़ तू, मैं गश्त करता हूँ, तू घर में बैठ बैठ के गश्त करता है। मेरे बदन थक गए, असलात में दर्द आ गए, बुखार चढ़ गए। दिल में क्या कहता है? पहचानता हूँ आपको, जिंदगी खत्म कर दिया आपकी खदमत करते करते। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बैठिए। छलांग लगा के दरवाजा खोला, थोड़ा चनाचोर, बिस्कुट, चाय पिला दिया, एक नापा पैरासीटामोल टेबलेट भी खिला दिया। आप कहने लगे तबीयत कैसी है? कुछ अच्छा मालूम होता है। आपने कहा क्या कहते हैं? मैं तो देखता हूँ आसमान साफ हो गया, बादल कट गए, अब तो अच्छा हो गया। सुनिए आपका बयान जो है ना, मैं सब दिल के अंदर तह में लिख लेता हूँ। कहते क्या?
आपने बयान किया, एक कदम नफ्स पर, दूसरी कदम जन्नत पे। आज आप घर पे आया है आराम करने के लिए, थोड़ा तकलीफ उठा के अगर मस्जिद में जा सके, आज आप अल्लाह के प्यारा बन जाएंगे। आपने कहा है एक गांठ से हजारों लाखों आदमियों के दिल के ताला खुल जाता है, हिदायत के रास्ता मिल जाते हैं। चाहिए तो कदे बदन मुसायदत नहीं करती, कहती इसीलिए तो कुर्बानी है, इसीलिए क्या है, कुर्बानी है। जाइए, कहते ठंडे लग रहे हैं, ले लीजिए चादर, लीजिए ये। ऐशा के बाद घर में आ जाएंगे, पैर में सर में तेल मालिश कर देंगे, आराम से बदन सब दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बदन चाहता नहीं, फिर भी सुनिए, हम आपसे सुने हैं 10 बाई घास करते हैं, मकामी घास, 8-10 मिल के घास। एक आदमी क्या करता है, दुआ करता है। आज आप दुआ करना, आपका दुआ कबूल होगा, आपका दुआ कबूल होगा। मेरे भाई, उस बीबी का कीमत कहाँ अब तक बढ़ेंगे जिस बीबी शौहर को इस खुशामद करके मस्जिद में भेज दे। वो तो गश्त में नहीं गए, लेकिन गश्त की पूरा अजर उनके नमाए अमल में आएंगे। इसलिए अकेला अकेला गश्त ना करना, अकेला अकेला नमाज ना पढ़ना, बल्कि बीबी को साथ ला के नमाज पढ़ना। आप कहेंगे तो बीबी को मस्जिद में ले जाएंगे, बीबी को मस्जिद में ले जाएंगे, बीबी की फिक्र को मस्जिद में ले जाएंगे। कैसे? बीबी कहने लगे मस्जिद में नमाज के औकात है ना, घर में भी नमाज क्या। अरे आपने कहा जोहर के 4 रकात सुन्नत तहज्जुद बराबर अजर रखती है, बाकी है 15 मिनट। आप तालीम में पढ़ते हैं सफ़ अव्वल की कीमत, मस्जिद में जाने की कीमत, और फिर जाके क्या इंतजार की कीमत, मस्जिद में जाके वजू के साथ बैठने की कीमत, ये सब तालीम में पढ़ते हैं। बाकी है 20 मिनट, कब जाएंगे, कब सफ़ अव्वल पढ़ेंगे, कब तकबीर पढ़ेंगे। 20 मिनट बाकी है। कहते हाँ, जामा कहाँ है, लेके कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। अजीब, आप तालीम करते हैं, घर में वजू करते हैं, मस्जिद जाते हैं, इहराम पहन के कहाँ जाते हैं, बैतुल्लाह में। वजू घर में कर लीजिए। वजू करने के बैठा, कहते क्या करते ना करते, मैंने वहाँ लोटा भर के पानी रख दिया, मिसवाक भी रख दिया, मिसवाक तो कर लीजिए। आपने कहा ना मिसवाक के साथ नमाज पढ़ेंगे, कितना। बीबी साहब मेरे मुसाइद है, मेरे क्या है, मुसाइद है। कहते हैं अच्छा क्या क्या लगेगा, खर्चा वगैरह लगता है ना, दीजिए। कहते नहीं, मस्जिद में जाने के वक्त कोई चीज़ ना लेना, अल्लाह के लिए जाना, अल्लाह के लिए आना। मेरे भाई, बीबी साहब अगर मुसाइद हो, सफ़ोल नहीं छोड़ेगी, तो बिल नहीं छोड़ेगी, फिर जाके क्या गाश नहीं छोड़ेगा। इसलिए बीबी के साथ क्या करना, मेहनत करना। करेंगे जी इंशाअल्लाह। हफ्ते में मकामी गाश्त और अबरीनी गाश्त, और क्या महीने में कितने दिन भैया, 3 दिन। हमारे बड़े फरमाते हैं, हम बांग्लादेश के आदमी है ना, मकरपास है, इसलिए कहते हैं 3 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 72 घंटा, 72 घंटा। आप लगाम लग चुके, कैसे होंगे 72 घंटा। कहते काश्त के दिन मेहनत करके सबको मस्जिद में ले आइए, सुबह फजर के बाद हिदायत हो जाए, उतना दूर जाना जिससे रोजाना आमाल की दिक्कत ना हो। वहाँ 72 घंटा पूरा करके फिर मस्जिद में आना, और क्या करना भैया, ऑफिस से हिदायत सुन के घर में जाना। मेरे भाई, हमारे बड़े फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं और उनकी जेब में बुलबुली होता है, वो अल्लाह के रास्ते में नहीं है, वो घर में है। समझ में आया ना, उसका नाम है मोबाइल, इस जमाना की सबसे बड़े फितना। इसलिए दरखास्त ये है, माफ़ फरमाना, क्या ना हो, मोबाइल ना हो, क्या ना हो, मोबाइल ना हो। मेरे भाई, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में जाना भी हमारे अल्लाह के रास्ते में ही जाना है, अल्लाह के रास्ते में जाना। क्यों जाना है, अल्लाह के रास्ते से घर में क्यों जाना है? बीवी पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, खेत देखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम तो दाई हैं। हम तो क्या है, दाई है। ब्लेड जहाँ होता है काटता है, हम भी जहाँ होते हैं वहाँ क्या काटते हैं। अगर इसी नीयत से जाना है कि वहाँ काम क्या करेंगे, चालू करेंगे, कफलतुन का गस्वतिन, तो मेरा वहाँ पे जाना भी अल्लाह के रास्ते में रहने जैसा ही है। इसलिए हम सुने हैं भाई अब्दुल्लाह हसन फरमाया करते थे, हमारे तारुफ ये नहीं है कि मैं ताजिर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, वो हो। नहीं नहीं, हमारा तारुफ क्या है, हम उम्मते मोहम्मदी हूँ। हमारा काम क्या है, दावत है। हमारा काम क्या है, दावत है। हर एक को जन्नत में ले जाना, ये हमारा काम है। हर एक की जिंदगी मुज़य्यन हो जाए, किससे, शमाइल से, रज़ाइल से। हर एक का जिंदगी कट जाए, परेशानी खत्म हो जाए, रज़ाइल नहीं रहेगा जिंदगी, यहाँ साफ सुथरा आराम दे होंगे। दिल में ना रहेगा हसद, ना रहेगा कीना, ना रहेगा बगस, ना रहेगा क्या कुछ, ना आएगा पहचानते भी नहीं।
छोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छोटा। दरख्त में जब फल आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? नीचे। तो अल्लाह के नीचे लोग कहने लगे ये देखिए ना, गुलाम की तरह खाते हैं। सबसे अफजल आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझसे ज्यादा गुलाम कौन हो सकते हैं? मेरे भाई झगड़ा नहीं होगा। क्यों झगड़ा होंगे? 2 टक्का की माल के लिए 1000 रुपया खर्च करना है। हमारे बांग्लादेश में अदालत में केस आप लोग यहाँ होते हैं ना मुकदमा, नहीं कहते अच्छा भाई ले लो। क्यों? हमारे हजरत मौलाना इनामुल हसन फरमाते हैं हार जाने में जीत है, हार जाने में जीत है। हम हार जाएंगे फिर भी मुकदमाबाजी झगड़बाजी नहीं करेंगे। क्यों? अगर हमने हार गया हक पर होते हुए भी, उधर नबी फरमाना है जन्नत में तुम्हारा मकाम, जन्नत में तुम्हारा क्या है? बला खाना है। ये फानी छोड़ दिया, बाकी मिल गया। इसलिए मेरे भाई अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते से घर में जाने के बाद हफ्तावार एक काम है। क्या? शब गुजारी। क्या? शब गुजारी। ये 5 काम में नहीं है, लेकिन 5 काम की मोटर है। 5 काम की क्या है? मोटर है। इसलिए शब गुजारी करना। आज बदन अच्छा नहीं, नींद भी गालिब है, या फार्मेसी वाले डॉक्टर खाना होते ना, नींद की दवाई भी है, कहते दो दे दो। क्या? खा लेंगे, खर्राटे लेंगे। घर पूछना था, बीबी साहब शुरू कर दिया, आज घर में किया हुआ आपको सुनना पड़ेगा। कहते क्या? कहते देखिए दरवाजा की तरफ, दरवाजा में हम कहते टिफिन करिया, खाना वगैरह उठाते ना, टिफिन। कहते वो वहां क्यों? कहते यही तो बात है ना, आपकी बड़ी बेटी आज क्या क्या खाना पकाया। आप सब गुजारी में जाएंगे ना, अकेले नहीं खाएंगे, 4-5 को लेके खाएंगे। मैं घर में आया सोने के लिए, लेकिन ये कारगुजारी सुनने के बाद थोड़ा कुछ, फिर जाके छोटी लड़की कहने लगे माँ मेरे हालत देखिए। कहते ये क्या स्लीपिंग बैग और वो। कहते छोटी बेटी आज आपके बिस्तर वगैरह साफ सुथरा करके झाड़ जोड़ के नए कपड़ा भी दे दिया वहां, ताकि आपको दिक्कत ना हो सब गुजारी में जाने में। छोटे बच्चे कहने लगे मेरे माँ मेरी हालत नहीं बताया। कहते बताता तो हूँ। छोटे बच्चे कहने लगे बेटा अब्बा जी सब गुजारी में जाते हैं, फिर जाके क्या करते हैं? सोते हैं। कभी नहीं कहा मशाइख ने ये कहा, मशाइख ने ये कहा, मशाइख ने ये कहा। आज ताकि बाबा को नींद ना पकड़े इसलिए छोटा सा पेट, कॉपी और एक कलम दे दिया। मशाइख जो बयान करेंगे सब लिख के ले आना, कल तालीम के हल्का में सुनाना है। वो जो दवाई लिया फेंक दिया, कहने लगे मेरे जिंदगी की क्या माना है? आपकी खिदमत ही तो ना, आप हमारे क्या आँख की ठंडक है। चलो चलो मरकज शब गुजारी में जा रहा। अकेला शब गुजारी करेंगे छूट जाएगा, अगर बीवी बच्चों को लेके करेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। करेंगे जी इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये काम क्यों? हमारे बड़े फरमाते हैं करते करते मरना, मरते मरते करना। क्यों जा रहा हूँ? ताकि जल्द अज जल्द नगद जमात बनाए, फिर जाके उनको लेके फिर निकलने की तौफीक अता हो करे। अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारे जिंदगी की जुज बन जाए। अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारी जिंदगी की हो जाए, जुज बन जाए। मेरे भाई क्यों निकलना? अरे निकलना तू भी बच्चा को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकलना तू जन्नत में जाने के लिए सहल तरीन रास्ता है। जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनकी हालत क्या है? अल्लाह फरमा रहा है वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। क्यों? जहन्नम में जाएगा, आग में जलाएंगे। क्यों? इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। कहाँ जाता है था? अरे भाई चलो चलो अल्लाह के रास्ते में। वो कहते बीवी भी तो है, बच्ची भी तो है, दुकान भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है। इन चीजों ने उनको फंसा दिया, अल्लाह के रास्ते में जा नहीं पाए। जो चीज जहन्नम की में जाने के सबब हुई उसको छोड़ना जन्नत में जाने के सबब। रुख दो है, दक्षिण और क्या उत्तर, जुनूब और क्या शिमाल। अगर कोई जुनूब की तरफ जाए शिमाल से भागेगा, अगर कोई जुनूब शिमाल की तरफ जाए जुनूब से भागेगा। जहन्नम से बच गया। क्यों? ये तो अल्लाह के रास्ते में फिरते थे।
اللہ کے راستے میں پھرتے تھے. اس لیے میرے بھائی ہم گھر میں جاتے تھے اس لیے کہ 5 کام چالو کرے. 5 کام کیا چالو کرے. یہ ہمارے زندگی کی میرے بھائی رہنا اللہ کے راستے میں نکلنا کیوں ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں خروج اس لیے تاکہ کام سیکھے. للتدریب والتمرین. مشق کی جگہ اور کرنے کی جگہ مقام. کرنے کی جگہ کیا ہے؟ مقام ہے. اس لیے مقام میں کام کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. خروج میں سب کہتے ہیں اللہ والا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب مقام میں جا کے کام شروع کریں گے نا، مسجد میں جا کے لوگوں کو پہچانتا بھی ہوں تم کو، پرسوں دن تم نے یہ کیا، اسی دن پہلے یہ کیا، اسی دن تو سب خراب ہو جائے. لیکن اگر مقام میں جا کے ہم نے اس کام سے جو مقصد ہے اس کو ہم نے زندگی کی جز بنا لیا تو دیکھیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کام سے مقصد کیا ہے؟ دین لانا ہے. کیا لانا ہے بھیا؟ دین. اگر ہماری زندگی میں دین آ گیا، کیا مانا ہے دین؟ دین 5 چیز کی خلاصہ کا نام ہے. صرف نماز دین نہیں ہے. 1 نمبر جو ہے ان کا نام کیا ہے؟ ایمانیات. ایمان نہیں، صرف ایمان کی شاخ کتنے ہیں؟ 77. ان سب کو جاننا ہے، ان سب کے بارے میں ہر ایک کو دعوت دینا ہے، وگرنہ ہم ہنستے ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے. یہ قانون کی لائن ہے، میں جانتا نہیں، پکڑ لیا، چھوڑ دیں گے مجھے؟ نہیں. اگر میں کہتا ہوں جانتا نہیں ہوں، جانتا کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے ایمان کس لائن سے آتے ہیں، ایمان کس لائن سے جاتے ہیں، ان سب کو جاننا پڑے گا. اسی لیے دعوت، اسی لیے کیا ہے؟ دعوت کی محنت، اسی لیے تعلیم کے حلقہ، اسی لیے میرے بھائی نماز کی محنت. اللہ توفیق عطا فرمائے. ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اعمال اتنا حسن اور خوبی اور اچھے ہوتے جائیں گے. ایمان آتا ہے اعمال سے. ایمان آتا ہے کس سے؟ اعمال سے. جاتا ہے معاملات کی خرابی سے اور معاشرات کی خرابی سے. کفار لوگ ہم یہ نہیں کہیں گے نماز چھوڑ دیجئے، کہتے نماز پڑھیے، حج کریے، روزہ رکھیے، سب کچھ کریے، لیکن معاشرات خراب کر لیجئے. معاشرات خراب ہو جائے گا، نماز چھوٹ جائے گا، ایمان کے تقاضا پر اٹھنا مشکل بن جائے گا. اس لیے میرے بھائی پہلے کام ہے ایمان کو اچھے بنانے کے لیے روزانہ محنت، نماز اور دین کو اور عبادات کو اچھے کرنے کے لیے روزانہ محنت. اور ہمارا تعلق کس سے ہو؟ علماء کرام سے ہو. یعنی عبادات درست کرنے کے لیے علماء کرام کی سے تعلق جوڑنے کی بدون کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کس سے تعلق جوڑنا؟ علماء سے. پھر جا کے میرے بھائی اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارا معاملات بھی درست ہو. ایمان 25 کروز کر گئے. یہ دیکھیے ایمان کی معیار 25 کروز کر گئے. تہجد نچیب چھوڑے گا، لیکن حاجی صاحب، گاجی صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، عامر صاحب معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے معاملات کو درست کرنے کے لیے. 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر سب مل کے 1 نمبر نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہوئی. بلکہ 1 نمبر کو 1 نمبر، 2 نمبر کو 2 نمبر، 3 نمبر کو 3 نمبر کہنا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. معاملات درست کرنے کے لیے علماء سے تعلق جوڑنا. حضرت دیکھیے ہمارا معاملات صحیح ہے یا نہیں؟ ہمارا معاملات کیا صحیح ہے نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سب فحوصات. کیا کہتے ہیں؟ فحوصات کرو. اسی طرح میرے بھائی ہمارا بھی معاملات صحیح کرنے کے لیے علماء سے اچھا انداز سے تعلق ہو. حضرت میری کشتکاری یہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہم نے آپ کی کارگزاری میں سنا ہے آپ عشر کسی انداز سے کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. معاملات، پھر جا کے معاشرہ، پھر جا کے اخلاق، سب لائن درست ہو گیا تو ہمارا کام چلیں گے. درخت تیرا نام کیا ہے؟ درخت کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے منہ نہیں دیا، زبان نہیں دیا، کیسے کہوں میرا نام ہے انار کا درخت، آم کا درخت؟ لیکن پھل سے کہہ دیں گے ہمارا نام کیا ہے؟ انار کا درخت. ہماری زندگی کی ہر لمحہ دعوت بن جائے میرے بھائی، میرے عبادت دعوت بن جائے، میرے نماز پڑھنا دعوت بن جائے، میرے معاملات دعوت بن جائے، میرے معاشرات دعوت بن جائے، میرے اخلاق دعوت بن جائے. کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.